Hello, today I shall take up angiosperms with you. We already know that the seed plants are of two types. Seed plants are of two types, that is gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms, for example, pinus. Angiosperms, for example, sunflower, mango. Gymnosperms are the plants which produce naked seeds. That is, these seeds are not enclosed. There is no fruit. And angiosperms particularly are the plants which produce enclosed seeds. That is, within the fruit. That is, they produce seeds within the fruit. Angiosperms. So, main feature of the angiosperms is that they are fruit producing plants. What they are commonly called as flowering plants. Flowering plants because they produce flower. And the flower is a specialized structure for sexual reproduction in angiosperms. Angiosperms, most of the plants which we commonly see around us, they are most widely distributed plants in different habitats. लेकिन समुंदर के अंदर बहुत कम, दैट इज ए फ्यू स्पीशीज, जोस्टीरा, थैलेसिया, ये मिलते हैं. सो वैसे तो जो एंजियोस्पर्म हैं हमको कहते हैं जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, डेजर्ट में भी मिलते हैं, एल्पाइंस में भी मिलते हैं, प्लेन्स में तो मिलते हैं, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड प्लांट्स. लेकिन समुंदर के अंदर ओनली ए फ्यू स्पीशीज आर प्रेजेंट. मैं एक बार पैसिफिक ओशन के अंदर गया तो वहाँ मेरे को मिला जोस्टीरा. बहुत मेरे को बदल के देख के खुशी हुई उसको, प्लांट को. वैसे थ्योरेटिकली किताबों में तो पढ़ते थे लेकिन प्रैक्टिकली आई कुड फाइंड इट देयर. सो एनी हाउ आफ्टर टेकिंग दिस पॉइंट, अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये एंजियोस्पर्म जो हैं ये इनका साइज़ क्या होता है, इनका वेरिएबल साइज होता है. दे कैन बी स्मॉलेस्ट, दैट इज वोल्फिया. Smallest angiosperm is Wolfia, and the tallest in the form of a tree, more than 100 meter tall, that is Eucalyptus. As you have been explained that these are the most commonly observed plants around us and they are useful to us also. They provide food, they provide fodder, they provide medicines. After that, you would like to know technically that how many types of angiosperms are there. Angiosperms fall into two classes. Now, major differences between them, after going through morphology of the leaf, then floral characters, we can sum up three differences between the dicots and the monocots. Number one is the dicots. Here we'll write dicots, here we'll write monocots. First, the most important, reticulate venation. Reticulate venation.
You must be remembering what is reticulate venation. And in monocots, pallid venation. This is the most common character which you are to observe. Second, flowers are tetramerous or pentamerous, and the flowers are ट्राइमीरस। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है। और उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड करेक्टर, हालांकि वो पहला करेक्टर है लेकिन सीक्वेंस के मुताबिक चलते हुए हम लिखेंगे थर्ड करेक्टर, दैट इज द सीड्स हैव टू कोटिलेडन्स। और यहां पर आप लिखेंगे वन कोटिलेडन। और इसकी एग्जांपल्स आप लेंगे ग्राम पी, और इसकी एग्जांपल आप लेंगे मेज, व्हीट, ओट एटसेट्रा। तो आप इस तरीके से इनकी दो क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फ्लावर। फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो हैं स्टेमन and the pistil. Stamen is a male part and the pistil is a female part. अब स्टेमन के बारे में थोड़ी सी आपको रिवीजन करनी है। स्टेमन इज राइटली कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। इट कंसिस्ट ऑफ filament and anther. Within the anther are produced pollen grains. Actually, within the anther first are produced the microspores, and the microspores mature into pollen grains. When the anther is mature, it dehisces and the pollen grains are released out. उसके बाद है pistil. Pistil is female reproductive organ. It consists of stigma, style and ovary, and in the ovary are present tiny body, one or more, called as ovules. Ovule is megasporangium. It consists of a stalk called funicle, and this body
and this body is covered by two teguments, and the mass it encloses is called nucellus. Integuments are present throughout except a small area called micropyle. In the ovary can be present one ovule or more than one ovule. तो इसका यहाँ पर आपने कोई बॉदर नहीं करना, वो आप प्रेजेंटेशन में करेंगे। सिंपली आप लर्न करेंगे कि जो पिस्टल है उसको फीमेल ऑर्गन बोलते हैं। मोरोवर आपने ये भी नहीं देखना यहाँ पर कि एक पिस्टल जो है वो एक कार्पल का बना हो सकता है, ज़्यादा कार्पल का बना हो सकता है। फॉरगेट ऑल दीज पॉइंट्स एट दिस स्टेज एंड फोकस ऑन what are angiosperms, what is their life cycle, that is broadly how they reproduce. So in the pistil you will find the stigma, style and the ovary, and in the ovary there is present a soft tissue called placenta, and on the placenta the ovule or ovules are attached, and these ovules are nothing but megasporangia. One ovule consists of a stalk called funicle and the body. The body has a mass called as a nucellus, and this nucellus is covered by two thin layers called integuments all around except a small area called micropyle. I think you have understood so far. कुछ समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट, जैसे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते थे, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? वन ऑफ द सेल्स ऑफ दिस न्यूसेलस, वन ऑफ द सेल्स, ओनली वन, दैट एनलार्जेस, बाकियों से अलग हो जाता है, एंड दैट फंक्शंस एज megaspore mother cell. This megaspore mother cell is a very important cell, very important cell, very important cell, और इसके ऊपर हम आप फोकस करेंगे। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस। अब मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके द्वारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। दैट इज, यदि 2n है तो 1n हो जाता है, और 4 मेगास्पोर बनते हैं। यहां लिखेंगे हम 2n, यहां लिखेंगे हम 1n। अब देखो नेचर के अंदर क्या ऑब्जर्व किया जाता है। आउट ऑफ दी 4 मेगास्पोर्स 3 डीजेनरेट एंड ओनली 1 इज फंक्शनल। देखिए फंक्शनल मेगास्पोर, एंड ये 3 क्या करते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। आप बुक में डायग्राम देखो, वहां पर फ्लावर बनाया हुआ है, एक स्टेमन बनाया हुआ है, इधर की तरफ एक पिस्टल बनाया है, पिस्टल के अंदर ओवरी दिखाई है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और फिर स्टाइल एंड स्टिग्मा आप देखेंगे। वहां पर ओव्यूल के अंदर उन्होंने एक मार्क किया हुआ है अलग से डायग्राम, थोड़ा सा आगे, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। तो वो है ये मेगास्पोर मदर सेल जिसको मैंने आपको बोर्ड में समझाया है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही रहेगा,
और वो इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और वो मेगास्पोर से बन जाएगी एम्ब्रियो सैक। अब देखिए बोर्ड के ऊपर देखिए डायग्राम, ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर, इससे बन गई क्या, एम्ब्रियो सैक। सर थोड़ा सा डिटेल में बना दो, डायग्राम अलग से बना दो, तो कोई बात नहीं, बच्चों बना देते हैं, वैसे तो आप +2 में करोगे, लेकिन मेगास्पोर के अंदर 3 बार माइटोसिस होएगी। एक बार माइटोसिस होने से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगी, फिर दोबारा माइटोसिस होएगी, 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगी, फिर होएगी 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी, और 8 न्यूक्लियाई से तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब ये बन गया एम्ब्रियो सैक, यहां देखिए ये एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज डेवलपिंग इनसाइड द न्यूसेलस। और इसके अंदर एक होता है एग अपरेटस दैट कंसिस्ट ऑफ 1 एग, और 2 जो है साइड में सेल होते हैं जिनको हेल्प सेल भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड। और इधर होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, और सेंटर के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई। These are called polar nuclei. This is embryo sac. This embryo sac is 8 nucleate. That is 3 न्यूक्लियाई यहां उन्होंने बनाया ये एग अपरेटस, 3 न्यूक्लियाई यहां उन्होंने बनाया एंटीपोडल सेल, और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में। इवेंचुअली, दैट इज आखिरकार, दैट इज एट ए लेटर स्टेज, these 2 polar nuclei they can fuse to form a secondary nucleus, that is 1n plus 1n, that is 2n, secondary nucleus. So that way it will become how many cells? It will become 7 celled structure. 3 cells over here, and these fuse 3 cells over here and 1 cell. This central cell, this is called central cell. थोड़ा सा +1 स्टेज पे आपको मुश्किल लगता होगा क्योंकि बिगिनर्स हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि आपने साइंस ली है, आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज ओव्यूल के अंदर से एक सेल बड़ा हो जाता है जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होती है और 4 बनते हैं मेगास्पोर्स, पहला स्टेप। फिर 3 मेगास्पोर्स हो जाते हैं डीजनरेट, एक रह जाता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होएगी, 1 आफ्टर द अदर, और 8 न्यूक्लियाई बनेंगी, 8 न्यूक्लियाई, और इनसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एक एग अपरेटस लर्न करना आपने, कंसिस्टिंग ऑफ 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स लर्न करने हैं, और एक बड़ा सेल सेंट्रल सेल लर्न करना है जिसके अंदर कितनी न्यूक्लियाई, हाँ शाबाश, वेरी गुड,
1 2, that is two polar nuclei, one coming from this pole and the other coming from this pole, and these two polar nuclei, they can fuse to form a secondary nucleus. And if we talk about the polar nuclei, we will say these are 1n and 1n. And if we talk about the secondary nucleus, we will definitely say that it is 2n. Only 2n structure in the female gametophyte. Otherwise, ये सारा क्या है, 1n है. सो थोड़ा एडवांस चल पड़ा, कोई बात नहीं, क्योंकि दो न्यूक्लियर फ्यूज कर जाएंगे तो 2n बन जाएगा. तो इसलिए कई बार एम्ब्रियो सैक के अंदर ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस. थोड़ा सा ब्रेनी बच्चे करके आना इसको याद, नेक्स्ट टर्म में पूछेंगे आपसे, ठीक है. चलो सर थोड़ा आगे बढ़ो, +1 में ही हमें +2 की डिटेल्स मत बताओ. चलो कोई बात नहीं बच्चा लोग, दोबारा फिर आते हैं. क्या? पोलिनेशन. और मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं पोलिनेशन इज अ शादी ऑफ द पौधा. कैसे? दैट इज जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स of the anther are transferred to the stigma. It can be in the same flower or it can be in the different flower, what of the same species. ये नहीं है कि आप मान लो मैंगो का आप पोलन ग्रेन ले लो, पिटूनिया का पोलन ग्रेन ले लो और उसको किसी और पे डाल दो. स्पीशी सेम होनी चाहिए, पिटूनिया का पिटूनिया से. समझ रहे हो? सो पोलिनेशन के अंदर दो प्रकार की पोलिनेशन आप स्टडी करेंगे +2 में, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. व्हाट द स्पीशीज शुड बी दी सेम. ओके, सो पोलिनेशन हो गया. पोलिनेशन के बाद क्या होगा? सर ये तो सिंपल है, हमने 7th 8th 9th में सारा कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा चलते जाओ आगे पढ़ाते जाओ. अरे भाई स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो कि भाई सर आप पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होता हुआ मत दिखाओ, आप सीधे पहुंच जाओ. डायग्राम देखो, पोलन ग्रेन स्टिग्मा से न्यूट्रिशन लेगा और वहां पर ये जर्मिनेट करेगा. यदि कंपैटिबल है तो, उसी स्पीशी का है तो, और दोनों मैच्योर भी हो चुके हैं तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी होगी ना. तो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? ट्यूब बनाएगा, कॉल्ड एज पोलन ट्यूब. एंड दिस पोलन ट्यूब विल कैरी हाउ मेनी मेल गमीट्स? 2 मेल गमीट्स. और ये जो एंट्री करेगी पोलन ट्यूब, पहले स्टाइल में से पास करती हुई किस में आएगी? ओवरी में आएगी. ओवरी से थ्रू माइक्रोपाइल, जनरली थ्रू द माइक्रोपाइल ओव्यूल के अंदर जाएगी, और ओव्यूल के अंदर जाने के बाद एम्ब्रियो सैक में जाएगी. एम्ब्रियो सैक में होता है सिनर्जिड, वो केमिकल्स पैदा करेगा और ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और थ्रू वन ऑफ दी सिनर्जिड ये ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगी. सर फिर क्या होगा? फिर क्या होना था? फुट ट्यूब जो है बर्स्ट कर जाएगी और वहां अपनी 2 मेल गमीट छोड़ देगी. तो यहां आप ध्यान देंगे, जो मेल गमीट हैं वो ट्यूब द्वारा लेके जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता फॉर देयर फर्टिलाइजेशन. और ये इनका बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है, दैट इज दे हैव गॉट रिड देमसेल्व्स ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन वाटर. अब सर आपने एग तो एक बनवाया और आप कहते हैं कि ट्यूब चली गई और ट्यूब ने वहां पर 2 मेल गमीट छोड़ दिए. तो सर ये क्या है, क्या चीज ये? थोड़ा सा समझा दो. बाकी ठीक है, आपने बताया है कि +2 में करेंगे, कर लेंगे. थोड़ा सा प्लीज़ और बता दो, क्योंकि हम थोड़ा सा एंक्शियस हैं टू नो कि क्या होता है. तो सुनिए बच्चों,
ये है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो फ्यूजन होती हैं। वन फ्यूजन इज सिनगैमी, that is fusion of one male gamete with this egg, and this produces zygote. Zygote, I have written here 2n. One male gamete is 1n and the female gamete is 1n, both fuse to form 2n. Zygote produces 2n structure called embryo. ये हम अभी करने जा रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपने एक ही पॉइंट डाल करना है अभी कि दो फ्यूजन होती हैं, उनमें से एक फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी, अब दूसरी फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जो दूसरे वाला मेल गमीट है वो जाके इन टू पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज कर जाएगा। पोलर न्यूक्लिया है 1n प्लस 1n, मेल गमीट है 1n, और हमारे पास इस फ्यूजन को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन और स्ट्रक्चर बन जाएगा कॉल्ड पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बुक में दिया हुआ है 3n, और यदि दो पोलर न्यूक्लियाई नहीं है, वो ऑलरेडी फ्यूज कर चुकी हैं और उनसे एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है, इसको बोलते हैं 2n, उसके साथ मेल गमीट फ्यूज करेगा, दोबारा फिर बन गया 3n। So, दो फ्यूजन्स, occurrence of two fusions in the same embryo sac is called double fertilization, and it is a unique feature of angiosperms. So, endosperm is particularly produced as a nutritive tissue in the angiosperms. एंडोस्पर्म थोड़ी सी अर्ली डेवलप करना शुरू कर देगी और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा कि आपने लर्न किया है, बीज बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू होगी और पेन से एंडोस्पर्म बनेगी। एंडोस्पर्म थोड़ा सा अर्ली बनना शुरू होगी, मैंने पहले बताया, और डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से फूड लेती रहेगी और डेवलप करती रहेगी। सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? अरे भाई किसका? सर एंटीपोडल्स का या सिनर्जिड का, ये सारे डीजनरेट हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसको हम बोले पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल है, टोटल ओव्यूल, इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते थे, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी जो इंटेगुमेंट्स हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी। दो इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर इंटेगुमेंट विल फॉर्म द टेस्टा एंड द इनर विल फॉर्म द टेगमेन, और सीड कोट के अंदर आपको पूरी डेवलप की हुई एम्ब्रियो नजर आएगी। अब आप लाइफ साइकिल पे ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। जो एक प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट्स, उसने एंथर के अंदर क्या बनाए थे? सर माइक्रोस्पोर। और पिस्टल के अंदर, ओवरी के अंदर क्या बनाए थे? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बनाए थे? सर मेगास्पोर बनाए थे। सो फ्लावरिंग प्लांट क्या बनाता है अपनी बॉडी के अंदर? क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर बनाता है एंथर में, और मेगास्पोर बनाता है किसमें? ओव्यूल में। तो इस प्लांट को, क्योंकि ये स्पोर पैदा करने वाला प्लांट है, हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये देखो लिखा हुआ है स्पोरोफाइट, क्योंकि ये प्लांट सीड से जर्मिनेट होता है और सीड के अंदर होती है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो होती है 2n। ये प्लांट 2n है।
मेन इसका जो सारा देख रहे हैं आप प्लांट, मेन ये स्पोर पैदा करने वाला प्लांट है, समझने वाले पॉइंट एंड में लिया, इसीलिए मैंने पहले तो आप फ्लावरिंग प्लांट कहते रहे, फ्रूट बीयरिंग प्लांट कहते रहे, लेकिन अब टेक्निकल आएगा थोड़ा सा। मेन प्लांट को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। अब जब मेयोसिस हो गई, दैट इज 2n से 1n बन गया, इनके अंदर शुरू हो जाती है गेमेटोफिटिक जनरेशन, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन और एम्ब्रियोसैक। सो ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम गेमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के उगने से मेल गमीट बनेंगे इन ट्यूब, उसको बोलेंगे मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन। और एम्ब्रियोसैक के अंदर एग बनता है, इसलिए इसको बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। लेकिन ये मेल एंड फीमेल गेमेटोफिटिक जनरेशन जो होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, फ्यू सेल्ड होती हैं, और इस जनरेशन को हम स्मॉल जनरेशन बोलेंगे। कौन सी? गेमेटोफिटिक जनरेशन को। सर थोड़ा सा एक पॉइंट और बताओ कि लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे? लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसके अंदर जो ये स्पोरोफाइट है ये मेन है, और गेमेटोफाइट क्या है? रिड्यूस्ड है। सो विद दिस वी फिनिश विद द टॉपिक दैट इज एंजियोस्पर्म्स। थैंक यू।